volts we have attempted it. So let's start from question number 22 today. So the question 22 is a ball bearing operating at a load of 8,000 hours of life. So load is 8,000. The life of the bearing in hours when the load is doubled. So question is relates the life with the load. It is relating the life with the load. So let's write somewhere the load F, then the load is doubled. First the load is F, then the load is doubled. First the life is 8,000. What is the life when the load is doubled? This is the question. So you already know the load life relationship. It is given by C by P to the power K. K equal to 3 in the case of ball bearing. It is a question of ball bearing. C is the dynamic capacity. P is the force. P is the force. Force is doubled. So there is a relation. Life and force are inversely related to each other. So we can write L1 by L2 equal to P2 by P1 to the power K. This relation we can develop from here, because dynamic load capacity is constant. The ball bearing operating, the same ball bearing is there. Load is changing, the ball bearing is common, same ball bearing. So the dynamic load capacity is constant here. So we can develop this equation from there. L1 by L2 is P2 by P1 to the power K. So the initially the life is 8,000. Then second life is L2. The load is twice F. Initial load is F to the power 3. F cancel out. 2 to the power 3 is 8. So L2 equal to 8,000 divided by 8. So it is 1,000 hours. So we will pick up option D. So option D is locked. Very easy question. बहुत सरल प्रश्न है ये तो ईयर 2007 में आने वाला. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन related to pressure vessel. The next question is related to pressure vessel. A thin spherical pressure vessel of 200 millimeter diameter. So the diameter is 200 mm. 1 millimeter thickness. Thickness is 1 millimeter. Is subjected to an internal pressure varying from 4 to 8 megapascal. So pressure is not constant. Pressure is changing. So pressure is fluctuating. So let P minimum is 4 megapascal and P maximum is 8 megapascal. Pressure is not constant. It has some range. So pressure is fluctuating pressure. Assume that the yield, ultimate and endurance strength of the material are 600. तो 600 आपकी कौन सी लिमिट है? यील्ड है. अल्टीमेट, दिस इज यील्ड लिमिट, दिस इज अल्टीमेट एंड दिस इज एंड्योरेंस लिमिट. सो 400 SE इक्वल टू 400, SUT इक्वल टू 800, SYT इक्वल टू 600. दिस डाटा इज आल्सो गिवन. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर द गुडमैन्स क्राइटेरिया, गुडमैन्स रिलेशन. सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बेसिकली फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, है ना. और कंपोनेंट इसमें क्या यूज कर लिया गया है? प्रेशर वेसल यूज कर लिया गया है. तो प्रेशर वेसल के कंसेप्ट भी यूज होंगे और साथ में फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के कंसेप्ट भी यूज होंगे. बोथ कंसेप्ट विल बी यूज्ड. सो एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर वेसल वी नो दैट प्रेशर वेसल हैज two stresses. One stress is PD by 40 and the second stress is PD by 2T. There are two stresses. One is PD by 40 and one is PD by 2T. So nothing is mentioned in the question कि हमें कौन सा वाला स्ट्रेस लेना है. तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो ये वाला स्ट्रेस लिया जाता है ना. Which stress is greater? So PD by 2T is double of PD by 40. So PD by 2T is greater than PD by 40. Okay. So you can find sigma minimum with the help of PD by 2T and sigma maximum again with the help of PD by 2T. So when you will discuss P minimum, then this P will be P minimum. So P minimum is given 4 megapascal. So it is 4 into diameter. Diameter is given 200 millimeter. So it is 4 into 200 divided by 2 into thickness. Thickness is 1 mm. So it is 200 into 4 divided by 2. How much it is coming? 800 by 2. It is 400 megapascal. Sigma minimum is 400 megapascal. And sigma maximum pressure is 8.
So it is 8 into 200 divided by 2 into 1. Just I am putting the values. So this will be 800 megapascal. Okay, once we have sigma min and sigma max, then we can find the mean stress. Mean stress is summation of these two, sigma max plus sigma min divided by 2. So it is 800 plus 400 divided by 2. So 800 plus 400 divided by 2. So it is 600 megapascal. Similarly, you can also find sigma A, that is the amplitude stress, or it is also known as stress amplitude. So that is the subtraction of sigma max and sigma min. 800 minus 400 is 200. So it is 800 minus 400 divided by 2. So it is 800 minus 400, 400 by 2, it is 200 megapascal. So you have the mean stress, you have the amplitude stress, and what is the Goodman criteria for the fluctuating loading? The Goodman criteria is sigma A divided by SE plus sigma M divided by SUT. Goodman criteria related to SUT equal to 1 by factor of safety. तो अब देखिए आपके पास सिग्मा एम अवेलेबल है, सिग्मा ए अवेलेबल है, एससी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? एससी इज गिवन 400 megapascal, SUT is also given in question 800 megapascal, then you can find factor of safety easily. चलिए सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। प्रयास और सभी लोग करें प्लीज, डू द कैलकुलेशन। हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी यू आर गेटिंग? चलिए बताइए करके, आप लोग भी कुछ कैलकुलेट कराना सीखिए, अब तो कई दिन हो गए हैं, आपको हैबिट आ जानी चाहिए कैलकुलेटर की, है ना? कितना आ रहा है? अच्छा, मैंने आज आपको आंसर की व्हाट्सएप कर दी है। प्रयास है यहाँ पर? प्रयास प्रेजेंट है आज? यस सर, बोलिए सर, अभी आया हूँ सर मैं। I have given the answer key, है ना? All the questions answer key I have sent it on your WhatsApp group, है ना? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, प्लीज रेफर दैट आंसर्स की, और ये वर्ड फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा, है ना? ओके सर। I will send you this word file also so that you can attempt these questions, you can mention and correct the answers, है ना? You can see my recordings, और हर क्वेश्चन को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, एक बार पूरा करिए, फिर 2 बार 3 बार करेंगे तो आपके माइंड में ये सेटल हो जाएंगे। देन योर एंड्योरेंस लिमिट विल बी कांस्टेंट, अदरवाइज आपकी एंड्योरेंस लिमिट फ्लक्चुएटिंग होती रहेगी, है ना? फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम आएगी, सेकंड टाइम में थोड़ी बढ़ेगी, थर्ड टाइम में फिर और बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके सर। मेरे ख्याल से कर लोगे इस क्वेश्चन को आप? यस सर। है ना? आंसर आ जाएगा। और एक चीज और बता दूं, मान लीजिए आपका आंसर ना आए, है ना? आपने पूरी कैलकुलेशन चेक कर ली और आपका आंसर क्या आ रहा है आंसर सर? हाँ, तो आप इसका आंसर की मैंने भेज दिया है 0.785। नहीं, आंसर तो हमारे पास 2, 1.4 और 1.6 और 1.2 अवेलेबल है, तो 0.75 तो यहाँ है नहीं, है ना? तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने इसको डिजाइन किया है, कौन से स्ट्रेस के हिसाब से, जरा बताना कौन से स्ट्रेस के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है, बताइए। हमने कौन से स्ट्रेस से डिजाइन किया है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से डिजाइन किया है या फिर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस से डिजाइन किया है? बताओ। PD/2T लिया है ना हमने, PD/2T मतलब सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस से हमने डिजाइन किया है ना? और मान लीजिए इस तरह से डिजाइन करने पे आपका कोई भी ऑप्शन मैच ना हो रहा हो यदि, है ना, तो फिर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगा के इसको डिजाइन करिए, है ना? और आप देखेंगे कि आपका कोई न कोई ऑप्शन जरूर मैच हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ये मैं आपके गेट के लिए थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ। कभी कभी लॉजिक तो यही है कि ज्यादा वाले स्ट्रेस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? लेकिन कभी कभी ऑप्शंस आपको लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से यदि दिए हों तो आप थोड़ा सा इसको भी ट्राई कर लीजिए, आंसर ना मैच हो रहे हो तो इसको ट्राई करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा एंड टिक दैट ऑप्शन। ओके, तो इसका आंसर बताऊं कि आपको कितना आ रहा है? इसका आंसर 1.6 आ रहा है। So ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया, 23 हो गया।
23 हुआ है, 24 को देखिए पहले, है ना, स्कीम खत्म कर देते हैं। फर्स्ट यू सी द 24. 24 is natural feet general bearing of diameter 50, diameter given है, length given है, D50 है, L50 है, operating at 20 revolutions per second. तो ये आपकी जो आरपीएम है ये आरपीएस में गिवन है, नॉट आरपीएम, इट इज आरपीएस। कैरी ए लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2000 न्यूटन। द लुब्रिकेंट यूज्ड हैज ए विस्कोसिटी ऑफ 20 मिली पास्कल सेकंड। ठीक है, तो विस्कोसिटी की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -9 मेगा पास्कल सेकंड हो गई। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं इस तरह के। रेडियल क्लियरेंस गिवन है ना, रेडियल, यहाँ वर्ड दिया हुआ रेडियल। So radial clearance equal to 50 micrometer. 50 micrometer. So 50 micrometer means 50 into 10 to the power -6 meter. और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000. So multiplied by 1000. So you will get 50 into 10 to the power -3 millimeter. So it is basically 0.05 millimeter. So radial clearance is 0.05 millimeter. Correct? The Sommerfeld number for the bearing is Sommerfeld number, है ना, क्वेश्चन समरफील्ड नंबर का है। तो समरफील्ड नंबर के लिए जनरल बियरिंग में समरफील्ड नंबर इज गिवन बाय म्यू एनएस बाई पी। ठीक है, म्यू एनएस बाई पी। म्यू क्या है आपका विस्कोसिटी, एनएस आपकी आरपीएस है ना, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, पी इज द प्रेशर, पी इज द प्रेशर। और इस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं ये बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी कहलाता है ना, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। और ये एक तरह का डायमेंशनलेस पैरामीटर है ना, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट, इट इज ए डायमेंशनलेस पैरामीटर। म्यू एनएस बाई पी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर बाई सी होल स्क्वायर। ठीक है, किन्हीं बुक्स में आर बाई सी मिलेगा, किन्हीं बुक्स में आपको डी बाई सी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। शुरू का चीज यही रहेगा, म्यू एनएस बाई पी डी बाई सी होल स्क्वायर इक्वल टू समरफील्ड नंबर। तो अब आपको ये समझना है, जब हम डी बाई सी यूज कर रहे हैं तो ये सी आपका डायमेट्रल क्लियरेंस है, क्योंकि आप इसे डायमीटर के साथ यूज कर रहे हैं, और इसे आप रेडियस के साथ यूज कर रहे हैं तो ये रेडियल क्लियरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे केस में यहाँ रेडियल क्लियरेंस दिया हुआ है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर बाई सी, नॉट डी बाई सी, है ना। और डी बाई सी करना है तो पहले इसको डायमेट्रल क्लियरेंस में कन्वर्ट कर लो, फिर आप इसको यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए म्यू आपको दे रखा है कितना, 20 इंटू 10 टू द पावर -9। तो चलिए म्यू की वैल्यू रख देते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -9, दिस इज म्यू। एनएस इज गिवन 20 आरपीएस, है ना, 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। सो मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर तो बहुत आसान है, W बाई एल डी, है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। W बाई एल डी प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं जनरल बियरिंग के केस में, जनरल बियरिंग का क्वेश्चन है। तो W की वैल्यू, लोड हमें कितना दे रखा है 2000, लेंथ कितनी दे रखी है 50, डायमीटर कितना दे रखा है 50, तो 50 इंटू 50। सॉल्व करिए, कितना प्रेशर हुआ 2000 बाई 1500, बताइए 2000 डिवाइडेड बाई 1500, इट इज कमिंग 1.33। तो ये प्रेशर को हम यहाँ यूज कर लेते हैं 1.33, इट इज 1.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो देखो जब ये प्रेशर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है और ये विस्कोसिटी जो है आपकी ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सेकंड में है ना। मेगा पास्कल सेकंड का मतलब वही है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और ये आपका आरपीएस है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये पूरी यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी आपकी फिट बैठ रही है। बहुत ध्यान दीजिए, कई बार लोग गलतियां करते हैं कि इस 20 को वो रिवॉल्यूशंस पर मिनट में यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि आप रिवॉल्यूशंस पर मिनट में, अरे 1.33 नहीं आ रहा। अच्छा कितना आ रहा है 2000 डिवाइड बाई 0.8। 0.8 ऐसा कैसे आ सकता है? 15, अच्छा 2500 है, इट इज नॉट 1500, है ना। ठीक है, यू आर राइट। सो 2000 डिवाइड बाई 2500, सो इट इज 0.8, है ना। ठीक है, सो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज नॉट 1.33, दिस इज 0.8, सो वी विल यूज हियर 0.8। तो ये डायमेंशनलेस पैरामीटर हो गया। अब यूएनएस इंटू आर, आर मतलब रेडियस, तो डायमीटर जब 50 है तो रेडियस हो गई 25, और क्लियरेंस, रेडियल क्लियरेंस इज गिवन, हमने निकाल लिया 0.05 mm।
so it is 0.05 mm whole square. Solve it. This is the Summerfield number. इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए, करिए जरा एक बार जल्दी से सॉल्व. 20 10 to the power -9 into 20 divided by 0.8, ठीक है, और into 625 and divided by 0.05 square. कितना आंसर आ रहा है? 0.125 आ रहा है मेरा. तो आपका कितना आ रहा है बताइए जब Yes, मैं sir, स्क्वायर को ये सॉल्व. 0.125. 0.125 है ना. यही आ रहा है, यही आ रहा है. आंसर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, है ना, 0.062. तो ऑप्शन बी इज फाइनल, ऑप्शन बी इज लॉक. ठीक है, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था. आपको समरफील्ड का कंसेप्ट पता होना चाहिए. समरफील्ड का फॉर्मूला क्या है? μ/p × r/c². और यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी तो मस्ट है. किसी भी क्वेश्चन में आप यूनिट की कॉम्पेटिबिलिटी रखेंगे, then your accuracy will be improved. So now we are moving to next question. Question number 25. Okay. 25. A bolted joint and shown in below. Bolted joint के क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं. तो देखिए कितने बोल्ट हैं इसके अंदर फिगर में. बोल्ट नंबर 1, बोल्ट नंबर 2, बोल्ट नंबर 3. 3 bolts are there, है ना. इन्होंने ABC नाम दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से नाम नहीं दे रहे हैं ना. बोल्ट नंबर A, बोल्ट नंबर B, बोल्ट नंबर C. The maximum shear stress in megapascal in the bolt at A and B respectively. अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पहले, है ना. मैंने आपको बताया ना, एक तो प्राइमरी शियर फोर्स होता है P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, और ये इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ? 10 किलो न्यूटन. तो 10,000 न्यूटन हो गया. 10,000 डिवाइडेड बाई कितने बोल्ट हैं? 3 बोल्ट्स हैं, तो 3 बोल्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये दिस मच ऑफ न्यूटन, ये हमारा प्राइमरी शियर फोर्स हो जाएगा. अब सेकेंडरी शियर फोर्स निकालने के लिए, है ना, आप क्या करेंगे? P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश. सेकेंडरी शियर फोर्स CR1, CR2, CR3. वही कंसेप्ट है पहले जो करा रखा है. अब C की वैल्यू क्या होती है? रिपीटिशन है ये. अब इसको आप ये बोल सकते हैं कि सर आप आगे बढ़ जाओ, ये हम कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम कर चुके हैं. C Yes, sir, हो जाएगा. हाँ, ये हो गया. अब देखो C यहां से निकल जाएगा. मूवमेंट आप निकाल ही लेंगे. फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स की वैल्यू इतनी है, मूवमेंट की वैल्यू 150, डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी 150 है, तो मूवमेंट आ जाएगा. अब R1 R2 R3 देखो, इस रिवेट सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, है ना. ये पहला रिवेट है, ये दूसरा रिवेट है या बोल्ट है, और ये तीसरा बोल्ट है. तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहीं पे होगा, बी पे ही होगा. बी का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा. ठीक है, तो ये मान लो पहला बोल्ट ए है, ये दूसरा बोल्ट बी है, ये तीसरा बोल्ट सी है. तो जब आप इस वाले को, इसके सेंटर को पहले वाले सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो ये आपकी R1 हो जाएगी. तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मिलीमीटर. और इस R1 का आप क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर. ठीक है, और परपेंडिकुलर कैसे करेंगे कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाए, है ना. क्लॉकवाइज मूवमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो G है, वहां पे फाइनल फोर्स का जो मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है. हाँ, तो बस ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और ऐसे ही इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका R3 हो जाएगा. और इसका परपेंडिकुलर इस तरह से, ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा. और इस पर्टिकुलर केस में R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि रिवेट नंबर 2 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई कर रहा है. तो रिवेट 2 की डिस्टेंस 0 हो जाएगी. रिवेट A की डिस्टेंस 10 है, बोल्ट A की डिस्टेंस 10 है, बोल्ट C की डिस्टेंस भी 10 है, लेकिन बोल्ट B की डिस्टेंस 0 हो जाएगी. तो R1 की वैल्यू 10 रख देंगे, 10 स्क्वायर. R2 की वैल्यू 0 रख देंगे, R3 की वैल्यू 10 स्क्वायर रख देंगे. M पता है, C निकल जाएगा. C निकलने से P1 डबल डैश निकल जाएगा, P2 डबल डैश निकल जाएगा, P3 डबल डैश निकल जाएगा. निकल गया. अब इसके बाद आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम में पहले प्राइमरी स्ट्रेस दिखा दो. ये हो गया P1 डैश, है ना. P1 डैश हमारा कितना आया? 1000/3 जो भी आया. ये हो गया P2 डैश, ये हो गया P3 डैश. अब हम ये वाले स्ट्रेस दिखा दें. P1 डबल डैश, P2 डबल डैश. तो एक ये हो गया P1 डबल डैश, ये सेकेंडरी शियर हो गया, और ये यहाँ पे सेकेंडरी शियर P3 डबल डैश. और P2 डबल डैश जो होगा वो P2 डबल डैश कुल मिला के 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 की वैल्यू 0 है. तो P2 डबल डैश तो 0 आएगा, तो उसे फिगर में दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसका इफेक्ट तो निल है. करेक्ट. अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है ये देख लो. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए जरा.
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मेगापास्कल इन द बोल्ट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो वो तो ए और बी पे कंसंट्रेट कर रहा है, बोल्ट नंबर ए और बोल्ट नंबर बी। तो बोल्ट नंबर बी पे तो कितना फोर्स है, केवल प्राइमरी शियर है, केवल प्राइमरी शियर है, मतलब ये 1000/3 न्यूटन का फोर्स है केवल। तो इसका आंसर तो हो गया 1000/3 न्यूटन। दिस इज द आंसर फॉर बी, है ना। और ए का आंसर कैसे निकालोगे, ए पर दो फोर्स आ रहे हैं और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक P1 डैश है, एक P1 डबल डैश है, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √P1 डैश स्क्वायर प्लस P1 डबल डैश स्क्वायर, यही तो रिजल्टेंट होता है। तो ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिजल्टेंट के फॉर्म में मिल जाएगा। एंगल 90, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है सिंपली। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी पर तो 1000/3 न्यूटन होगा, तो बी के आंसर मिला लीजिए पहले। बी का आंसर है कहीं 1000/3 इसमें, बोलिए। अच्छा, अब ये फोर्स आया है, क्वेश्चन में शायद स्ट्रेस पूछ रहा है, ये देखिए चेक करिए। यस सर, यस सर, यस। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो फोर्स नहीं पूछ रहा है, वो शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। तो 1000/3 ये तो हमारा फोर्स है, डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया क्या होता है बोल्ट का, π/4 d²। अब बोल्ट का डायमीटर दिया है 3 होल्स ऑफ M10, बोल्ट का डायमीटर M10 है, तो ये हो गया 10²। इसको सॉल्व करिए तब आप आंसर मिलाइए। तो जरा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई 3, 333 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100π, तो ये आपका आंसर आ रहा है 4.24 आ रहा है मेरा। आप भी चेक कर लीजिए जरा एक बार, है ना। तो आपका भी 4.24 आ रहा है, बताइए 4.24 आ रहा है या 42.4 आ रहा है, बोलिए। वो हमने न्यूटन में लिया है, अच्छा वो 10,000 है, ये मैंने 1000 ले लिया ना, ये 10,000 है क्योंकि 10 किलो न्यूटन है ना फोर्स। तो 10 किलो न्यूटन के जब आप डिवाइड 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ये 10,000 है, ये 10,000 है। तो मेरा आंसर अभी 4.25 आया था, 10 से मल्टीप्लाई होकर 42.5 हो जाएगा। तो 42.5 देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो बी तो हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, ए और सी में से कोई एक है, करेक्ट। अब देखो ए पे फोर्स ज्यादा आएगा, नेचुरल सी बात है, बी से, और ये दोनों पे इक्वल बता रहा है, तो ये सी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। है। बिना ए पर फोर्स निकाले भी आपने इस तरह से आप थोड़ी सी ट्रिकिंग लगा सकते हैं, है ना। और यदि नहीं निकल रहा है तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, अंडर करके निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 242.6 को चेक कर लो जरा, है ना, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसका भी स्ट्रेस निकालो, इसका भी स्ट्रेस निकालो, और R = √, कर दो, या पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, उसको फिर एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 242.6 आ जाएगा। आगे चलें सिद्धार्थ। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, ए ब्लॉक ब्रेक शोन बिलो, है ना, क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रेक, है ना। बैंड ब्रेक का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये ब्लॉक ब्रेक का क्वेश्चन है। सोन हैज ए फेस विड्थ ऑफ 300 mm, मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, है ना। ब्रेक के केस में फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, म्यू 0.5, एक्टिवेटिंग फोर्स 400 न्यूटन, ये 400 न्यूटन जो है वो एक्टिवेटिंग फोर्स है। द ब्रेकिंग टॉर्क, टॉर्क ही पूछ रहा है ना, टॉर्क निकालना है, करेक्ट। तो जो बैंड ब्रेक होता था उसके केस में टॉर्क क्या होता था, T1 - T2 × R। बैंड ब्रेक के केस में T1 होता था टेंशन ऑन द टाइट साइड, T2 होता था टेंशन ऑन द स्लैक साइड। लेकिन ब्लॉक ब्रेक के केस में बैंड यूज होता ही नहीं है, यहाँ तो ब्लॉक यूज होता है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो μn जनरेट होता है। कितना जनरेट होता है, μn, फ्रिक्शन फोर्स μn होता है ना, या μr होता है, जहां पे r नॉर्मल रिएक्शन होती है, आप μr भी बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे r तो रिएक्शन आती है, नॉर्मल रिएक्शन r आती है, फ्रिक्शनल फोर्स μr हो जाता है, और एक ये फोर्स है 400, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, 3 फोर्स हो गए। अब ये तीनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है इनका मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। तो यहां पर देखो कि कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, है ना, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट।
इस फिक्स पॉइंट पर आप क्या करें, मोमेंट निकाल लें। मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, तो सिग्मा MO मस्ट बी 0। तो अब इस पॉइंट पे मोमेंट निकालिए। तो देखो सबसे पहले आप मोमेंट निकालिए 400 का। 400 की डिस्टेंस कितनी है बताओ? 400 की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है? 400 प्लस 200 कितनी हो गई? 600। तो हमारा मूवमेंट हो गया 400 इंटू 600, ये मूवमेंट हो गया। और ये मूवमेंट कैसा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलिए, पॉइंट की तरफ ले जाइए एरो को। तो ये मूवमेंट कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। 400 का मूवमेंट हो गया 400 इंटू 600 क्लॉकवाइज। अब आर पे आइए। आर का मूवमेंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसके एरो को जब आप पॉइंट O की तरफ लाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्लस साइन यूज करिए। आर हमें अभी पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। आर का डिस्टेंस कितना है बोलो? 200। तो आर का डिस्टेंस है 200। अब एक फोर्स ये भी है म्यू आर। म्यू आर को देखिए, आप लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइए तो इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O से पास हो रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है? पॉइंट O से पास हो रहा है। तो इस फोर्स का मोमेंट पॉइंट O पे कितना हो जाएगा? 0। ये तो पता है ना, जब कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास होता है जहां पे हम मूवमेंट सेंटर से पास होता है, तो उस मूवमेंट सेंटर पे उसका मूवमेंट 0 होता है। तो ये 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब यहां से आप आर कैलकुलेट कर लो। तो आर की वैल्यू बताओ जरा कितनी हुई, सॉल्व करिए। आंसर 45 आ रहा है इसका। कितना? आंसर 45। हाँ, 45 भी आ रहा है, सही है। 45 सही है आपका, बिल्कुल सही है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी, जरा ये बताइए। 400 इंटू 600 डिवाइड बाई 100। हाँ, 400 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 200, यही आएगी ना। तो 1200 आ रहा है आंसर आर का। आर का आंसर 1200 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। जब आर का आंसर 1200 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा? म्यू आर। अब म्यू की वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 इंटू 1200, ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो 1200 इंटू 0.25 आप करेंगे तो कितना हो गया? 300 हो गया न्यूटन में। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स को जब आप रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा। तो रेडियस कितनी है? 305 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई? 150। तो 300 इंटू 150, 300 इंटू 150 करोगे तो 45,000 न्यूटन मिलीमीटर। अब इसको न्यूटन मीटर में चेंज करोगे तो हो गया 45 न्यूटन मीटर। तो अब आंसर चेक करें, 30 40 45 इज राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। अभी आपने सी ही बताया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉक्ड, ठीक है। ब्लॉक ब्रेक का क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन 27, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कम समय में ज्यादा इनपुट देना चाह रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास केवल एक क्लास और है आज के बाद, है ना। इसके बाद जो आपकी क्लास होंगी मशीन डिजाइन की, वो हरीश सर लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक बार को फिनिश हो जाए, है ना। तो अब मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा जिस तरह के कंसेप्ट हम डील कर चुके हैं, है ना। और जो नया क्वेश्चन आएगा उसी को हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी बताते जाइएगा कि इसे छोड़ सकते हैं, इसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27, the piston rod of the diameter 20 millimeter and length 700 millimeter in a hydraulic cylinder is subjected to a compressive force, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव फोर्स किस पे आते हैं? कॉलम पे आते हैं, कॉलम पे आते हैं ना कंप्रेसिव फोर्स। ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द एंड कंडीशन फॉर द रॉड में बी अज्यूम्ड एज गाइडेड एट द पिस्टन। गाइडेड एट द पिस्टन। अब कॉलम पे तो अभी आपकी बात चल रही थी कि कॉलम की जो एंड कंडीशंस होती हैं, आपने देखा होगा एक कॉलम ऐसा होता है जो एक पॉइंट पे तो फिक्स होता है, दूसरे पॉइंट पर फ्री होता है ना। एक कॉलम ऐसा हो सकता है जो दोनों पॉइंटों पे हिंज है, इट इज हिंज ओवर हियर, हिंज ओवर हियर। एक कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों जगहों पर फिक्स है ना। और एक कंडीशन होती है कि एक जगह फिक्स है और एक जगह पे वो हिंज है, ठीक है। तो दोनों जगह हिंज होता है, तो ये कॉलम्स के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है? क्रिपलिंग लोड कैसे निकालते हैं, कौन सी थ्योरी लगाते हैं? पाई स्क्वायर ई बाई ई आई डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर, यही होता है ना, एल इफेक्टिव स्क्वायर। या फिर इसको कई लोग ऐसे लिखते हैं,
n पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम, और LE क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला फॉर्मूला मैं तो नहीं यूज करता हूं, मैं ये यूज करता हूं n पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। तो इस केस में मुझे L की चिंता नहीं करनी होती है, मुझे केवल n को देखना पड़ता है कि n की वैल्यू क्या है। तो जब दोनों जगह हिंज होता है तो n की वैल्यू 1 ली जाती है, दोनों जगह फिक्स होता है तो n की वैल्यू 4 लेते हैं, आपने ये सॉम में भी पढ़ा होगा। और जब एक जगह कॉलम फिक्स है और एक जगह फ्री है, एक जगह फिक्स है और एक जगह हिंज है, तो उस केस में n की वैल्यू 2 लेते हैं। और जब एक जगह फ्री है एक जगह फिक्स है तो n की वैल्यू 1/4 लेते हैं या 0.25 लेते हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपने सॉम में कॉलम थ्योरी में पढ़ा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कॉलम इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो क्या लिख रहा है, गाइडेड एट द पिस्टन। गाइडेड एट द पिस्टन का मतलब ये फिक्स्ड को रिप्रेजेंट करता है, इट इज फिक्स्ड एट द पिस्टन एंड। ठीक है, पिस्टन रॉड ऑफ डायमीटर सो मच सो, डायमीटर 20 दे रखा है, लेंथ 700 दे रखी है। हाइड्रोलिक सिलेंडर का केस है, एक तरफ पिस्टन से गाइड हो रहा है, मींस फिक्स है कॉलम, एंड हिंज्ड एट द अदर एंड, दूसरी तरफ वो हिंज है। तो एक तरफ फिक्स है एक तरफ हिंज है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे, बोलो, n की वैल्यू 2 लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ फिक्स है एक तरफ हिंज है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलवा रहा है हमसे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो देखो कंप्रेसिव फोर्स है ना, कॉलम के लिए हमने ये कौन सी थ्योरी लगा ली है, यूलर थ्योरी। एक तो यूलर थ्योरी होती है, एक रैंकाइन थ्योरी होती है। ठीक है, तो यूलर थ्योरी वर्क करती है लॉन्ग कॉलम के लिए, रैंकाइन थ्योरी वर्क करती है शॉर्ट कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो कॉलम की लेंथ कितनी है, 700 mm। तो जब तक स्टिल नॉट मेंशन्ड यू टेक इट एज ए लॉन्ग कॉलम, है ना। तो लॉन्ग कॉलम से इसको आप कर दी, क्योंकि रैंकाइन थ्योरी में आपको पता है कुछ कांस्टेंट यूज होता है, और यहाँ क्वेश्चन में कहीं कांस्टेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज ए लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम के केस में क्रिपलिंग लोड इस फॉर्मूले से निकलता है। तो आप सबसे पहले तो क्रिपलिंग लोड निकाल लो। तो क्रिपलिंग लोड विल बी गिवन बाय n की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 2 पाई स्क्वायर, पाई तो 3.14 होता ही है, E मतलब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, 200 गीगा पास्कल में दे रखा है ना। गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में बदलिए, कितना आएगा बोलिए। 200 × 10⁻³ हाँ, 200 × 10⁻³ ये हमारा मेगा पास्कल में हो गया। पाई स्क्वायर ई आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉलम का, कॉलम कैसा है, डायमीटर मतलब सर्कुलर कॉलम है, कॉलम कैसा है, सर्कुलर कॉलम है, डायमीटर है तो सर्कुलर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d4 होता है, पता है ना आपको। तो बस आप इसको यूज कर लीजिए, π/64 d की वैल्यू आपको दे रखी है 20 होल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब कॉलम की लेंथ दे रखी है 700 mm, 700 यूज कर लीजिए, तो ये आपका ट्रिपलिंग लोड आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है, प्लीज सॉल्व इट। प्रयास करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रयास करेंगे बताएंगे, या सिद्धार्थ चंदेल करेंगे, या आप कोई और भी बताइए। हर बार 2 ही बच्चे थोड़ी करते रहेंगे। प्राची सिंगल है क्या क्लास में, संदीप राजपूत हैं, कोई भी बताइए, दीपक शर्मा हो, कैलकुलेशन करिए इसको और मुझे बताइए कि ट्रिपलिंग लोड कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द ट्रिपलिंग लोड। कैलकुलेटर घुमाइए। यस, हाउ मच करिए, थोड़ा सा कर रहे हैं ना, आना बताइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रयास, आर यू डूइंग। 62.864 किलोन्यूटन। हाँ 62 सर चैट में बोल दिया है, देख लीजिए सर। अच्छा, चैट में दे दिया आपने, चलिए तो मैं
इसको यहाँ लिख लेता हूँ। आपने पाई की वैल्यू कितनी यूज की है? 3.14 या थोड़ा आगे कैलकुलेटर वाला जो पाई आता है 7-8 डिजिट में वो यूज किया है? 3.14। हाँ, तो आप आगे से ना जो कैलकुलेटर में पाई का फंक्शन है ना, शिफ्ट दबा के जो आता है, यस सर। उसको यूज किया करिए। ओके तो सर। उससे क्या होता है, नहीं आती है कैलकुलेशन में। सर एक डाउट है सर। हाँ, मैंने फंक्शन से कैलकुलेट किया है, उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 63278.11 न्यूटन में। ठीक है, यस और सर। आपका शायद 62,000 कुछ आ रहा है जो आप बता रहे हो। यस सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 62,000 और 63,000 थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पाई की वजह से ही आ रहा है कि आपने 3 पाई भी पाई वैसे यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है ना? नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, पाई की जगह का यूज है। तो पाई 3.14 ना लेके आप कैलकुलेटर से जो फंक्शन है पाई का उसको यूज किया करिए। ओके सर। आपका क्रिपलिंग लोड हो गया। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हेलो। हाँ, तो अब बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैसे निकालेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? आपके कॉलम पे इतना तो लोड आ रहा है, क्रिपलिंग लोड, और ये कंप्रेसिव फोर्स उस पे आ रहा है 10 किलो न्यूटन। कॉलम आपका इतने के लिए सेफ है, और 10 किलो न्यूटन उस पर फोर्स आ रहा है। 10 किलो न्यूटन का मतलब कितना हो गया? 10,000 न्यूटन हो गया ना? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे? क्रिपलिंग फोर्स कितना है? 63278। 63278, this is the crippling force divided by the actual force coming on the column. तो 10,000, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? इसको 10,000 से भाग लगा के 6.32। तो 6.32 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आंसर क्या दे रखे हैं? एक तो 0.68 दे रखा है, एक 2.75, एक 11 और एक 5.62। तो अब इस केस में व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लोज आंसर? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लोज आंसर? ये भी गेट में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आंसर यदि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, then you have to attempt the most appropriate close answer. So 5.62 and 6.32 are much closer than the other given values, है ना? 11 के रेस्पेक्ट में, 2.75 के रेस्पेक्ट में, 0.68 के रेस्पेक्ट में 6.32 is much closer to 5.62. So our option is C. So option C is locked here, है ना? चलिए इस क्वेश्चन से हमारा कॉलम डिस्कस हो गया, है ना? Very good. Now we are moving to next question. ठीक है, काय का क्वेश्चन है? गियर सेट हैज ए पिनियन 20 teeth, गियर with 40 teeth. The pinion runs at 30 revolutions per second. ठीक है, पावर दे रखी है, टीथ आर ऑन 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम एंड हैव ए मॉड्यूल ऑफ 5, लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन 19. द सेंटर डिस्टेंस फॉर द अबव गियर सेट इज गिवन बाय सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस तो जनरल फॉर्मूला है m/2 z1 + z2, है ना? याद आ रहा होगा आपको, सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है m/2 z1 + z2। ठीक है, z1 z2 टीथ है, m मॉड्यूल है। तो ये गियर सेट है, दो गियर हैं, पिनियन पे 20 टीथ हैं, तो z1 तो 20 हो गया, गियर पे 40 टीथ हैं, z2 40 हो गया, 20 + 40। पिनियन रन्स 30 रिवॉल्यूशन पे रन करता है। मॉड्यूल देखिए, क्या मॉड्यूल गिवन है? यस, मॉड्यूल इज 5, तो 5 यूज कर लीजिए, 5/2 सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया? 40 20 60, 60/2 30, 30 × 5 150 mm। तो सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 mm। आंसर बी इज लॉक्ड, ऑप्शन बी इज फाइनल। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्टिंग टूथ। बताओ इसको कैसे निकालोगे? एनी आइडिया कोई देगा? हाँ जी, कौन बताएगा? कॉन्टैक्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? लाइन ऑफ एक्शन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? बताइए, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन इज गिवन 19 लेंथ, है ना? तो आपने देखा होगा एक गियर ऐसे होता है, दूसरा गियर ऐसे मैशिंग करता है, बीच में ये कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट लाइन। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? टेंजेंट लाइन, है ना? एक इसी तरह से लाइन ऑफ एक्शन होता है।
तो लाइन ऑफ एक्शन की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है, 19 mm, है ना। तो इसके ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कि मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो आप। तो लेंथ ऑफ आर्क होती है लाइन ऑफ एक्शन मतलब L डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा। अब L आपकी कितनी है 19 और अल्फा आपका कितना है 20 डिग्री फुल डेप्थ है। कौन सा है देखो इसमें, द टीथ आर ऑन द 20 डिग्री फुल डेप्थ। यदि 14.5 डिग्री होगा तो 14.5 यूज करेंगे, 20 डिग्री है तो 20 यूज करेंगे। तो जरा इसको सॉल्व करिए प्रयास, बताइए कितना आ रहा है लेंथ ऑफ आर्क। 20.21 mm. हाँ कितना लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है, 20.21. 20.21 mm। वेरी गुड। अब देखो जब आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाए तो उसके बाद में कांटेक्ट रेशियो निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, है ना, डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। तो वही कांटेक्ट रेशियो होता है कि कितना सर्कुलर पिच का कितना पार्ट आर्क, मतलब एक आर्क जो आर्क है वो सर्कुलर पिच कितनी सर्कुलर पिच को एब्जॉर्ब किए हुए है ना। तो अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। आर्क की वैल्यू हमारी आ गई है 20.21। अब नीचे चाहिए हमको सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच बताओ क्वेश्चन में दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो सर्कुलर पिच निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर पिच का, पाई एम, पाई इंटू मॉड्यूल। मॉड्यूल गिवन है 5, तो सर्कुलर पिच कितनी हो गई 5 पाई। तो 5 पाई से इसको डिवाइड कर दो। तो 20.21 डिवाइड बाई 5 पाई, बताइए कितना आया। 1.29 ऑप्शन सी. ऑप्शन सी 1.29 आ गया, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी इज लॉक्ड, ऑप्शन सी इज फाइन। ठीक है 29 भी हो गया हमारा। याद रखिएगा इसको, लेंथ ऑफ आर्क एक्शन दी हो तो लेंथ ऑफ आर्क निकालो, लेंथ ऑफ आर्क को सीधी से डिवाइड करो, वही कांटेक्ट रेशियो होता है ना। ये आपके लिए थोड़ा सा नई चीज हो सकती है, शायद आपको नहीं पता होगी। अब आगे चलते हैं 29 के बाद 30। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कॉन्टेक्टिंग गियर टूथ इज। अच्छा इसी क्वेश्चन में फोर्स भी पूछ रहा है। देखो एक ही कॉमन डाटा से 3 क्वेश्चन हुए हैं, 28, 29, 30, यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा 28, 29 ही लिखा हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कॉन्टेक्टिंग गियर टूथ इन एन। ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। लग तो ऐसे ही रहा है कि दिस इज आल्सो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई और डाटा तो दिया नहीं है। तो अब क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स, गियर पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है, बड़ा आसान होता है ना। पावर दे रखी है, पावर दे रखी है और आरपीएस दे रखा है। तो आरपीएस दे रखा है तो आरपीएम तो निकल ही जाएगा, 30 इंटू 60, एन बराबर 30 इंटू 60, तो 1200 आरपीएम हो गया। ठीक है, एन गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है, पावर गिवन है किलोवाट में। जब पावर और आरपीएम गिवन है तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, जब टॉर्क निकल जाएगा तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, एमटी डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो यहां से टॉर्क निकलेगा, टॉर्क बाय रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है ना, रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी है तो निकाल लीजिए। डायमीटर दे रखा है ना भाई, डायमीटर क्या होता है एम जेड। एम की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू 20 है ना। मान लो पीनियन के लिए बात करें तो 20 इंटू 500, 100 का आधा करो तो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आरपीएम किसकी थी, ये पीनियन की आरपीएम थी ना, तो पीनियन के डायमीटर को यूज करेंगे, पीनियन की रेडियस को यूज करेंगे। यदि आरपीएम गियर की होती तब हम गियर के डायमीटर को यूज करते, है ना। तो ये भी आप कंसेप्ट रखिए कि हमने पीनियन का ही टीथ क्यों लिया, राइट। तो रेडियस पता है तो पीटी इक्वल टू एमटी बाई आर से अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। है ना। चलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अब देखो कंसेप्ट देना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्व करना तो आपके हाथ में है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखो आप पावर दिया, आरपीएम दिया, एमटी निकालिए, एमटी से आप फोर्स निकाल लीजिए। अब मैंने ये भी बता दिया कौन सा पीनियन का आप रेडियस यूज करेंगे या उसका यूज करेंगे। पीनियन का रेडियस यूज करिए क्योंकि आपने पीनियन की आरपीएम यूज करी है उधर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। A disc clutch is required to transmit 5 किलोवाट at 2000 आरपीएम। ठीक है, अब इसमें भी पावर दी है, आरपीएम दी है। The disc has a friction lining with coefficient friction 0.25। ठीक है, क्लच के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, 2/3 म्यू डब्ल्यू R1 क्यूब
माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या था, फ्रिक्शनल टॉर्क। इट इज ए फ्रिक्शनल टॉर्क क्लच के केस में। तो अब देखो यहाँ पर पावर दी है, आरपीएम दिया है, तो टॉर्क तो निकाल ही लोगे, है ना। तो एमटी तो हमें मिल गया यहाँ पे भाई। एमटी तो एक तरह से हमें नोन हो गया ना। एमटी क्या होता है, 60 10⁻6 किलोवाट डिवाइडेड बाई 2 पाई एन। तो न्यूटन मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा इसका। तो न्यूटन मिलीमीटर में आप टॉर्क निकाल लेंगे। मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। द डिस्क हैज ए फ्रिक्शन लाइनिंग विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.25, म्यू गिवन है। द बोर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग इज इक्वल टू 25 mm। अब बोर रेडियस मतलब इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस का मतलब R2 है ये, तो R2 इज 25 mm गिवन। तो R2 आपको गिवन है। अज्यूम यूनिफॉर्म कांटेक्ट प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल, प्रेशर भी गिवन है। तो इस फॉर्मूले को प्रेशर के फॉर्म में चेंज कर लो ना। मैंने बताया था पिछली बार भी कि आपका ये फॉर्मूला म्यू इंटू पी पाई है ना, W डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी पाई। P इक्वल टू W बाई इतना होता है, तो इट इज पी पाई। ठीक है, देखो P इक्वल टू होता है W अपॉन एरिया, एरिया होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो P पाई की जो वैल्यू है वो यही हो जाएगी W बाई दिस मच। सो इट इज 2/3 म्यू पी पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इक्वल टू एमटी। अब देखो यहाँ पे एमटी गिवन है, म्यू गिवन है, प्रेशर गिवन है, पाई तो कांस्टेंट है ही है, R2 गिवन है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ द आउटसाइड रेडियस। तो आपसे क्या पूछ रहा है, R1 पूछ रहा है, दैट्स ऑल। तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे मेरे ख्याल से। तो बताइए, मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़े, एक बार आप हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट, दीपक कुमार शर्मा, ठीक है, आप लोगों ने काफी आंसर्स निकाले हैं, वेरी गुड। दीपक 3.1 राइट। सिद्धार्थ चंदेल का ऑप्शन बी 6.32 ठीक है ना, आप लोग कर रहे हैं पैरेलल में, इट इज गुड, यू आर डूइंग वर्क। तो चलिए चैट को मैं फिलहाल क्लोज करता हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड है एक तरह से। ये फॉर्मूला याद रखिए, उसको प्रेशर के फॉर्म में चेंज करने की भी आप हैबिट रखिए। जैसा क्वेश्चन हो, मान लो लोड दिया होता तो लोड के फॉर्म में यूज कर लेते, वट एवर यू वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट प्रोफाइल 19 टूथ पिनियन। ठीक है, तो 20 डिग्री, अल्फा कितना हो गया 20 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज 20, 19 टूथ जेड इक्वल टू 19 एंड 37 टूथ गियर, तो Z1 19 Z2 37। ठीक है, दोनों के टीथ दिए हैं, मैशिंग में है, मॉड्यूल 5 है, M is 5, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर, अरे ये तो कर लोगे आप, इक्वल टू क्या होता है M/2 Z1 प्लस Z2। अब देख लो आप, M गिवन है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, सेंटर डिस्टेंस बड़े से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, 32 को छोड़ देते हैं, अपने आप कर लेना। और मैंने आंसर की आपको भेज दिया, आंसर की जो भी आप किया है मैच कर लेना। ये कोई एरर है देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, a cylindrical shaft is subjected to an alternating stress of 100 megapascal, fatigue strength to sustain 1000 cycles is 490 megapascal। अच्छा, अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सी टॉपिक का है, बोलिए। डायनामिक लोडिंग। हाँ, डायनेमिक लोडिंग में भी आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये क्वेश्चन एसएन डायग्राम का है ना। जैसे डायनेमिक लोडिंग में कई सारी चीजें आ जाती हैं, गुडमैन क्राइटेरिया भी डायनेमिक लोडिंग का ही पार्ट है, सोडरबर्ग है, गर्बर है, एसएन डायग्राम है ना। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसएन डायग्राम। ठीक है, और एसएन डायग्राम आपको पता है ना, कुछ लॉग लॉग पेपर पे बनता है। एसएन डायग्राम कैसे बनता है, लॉग लॉग पेपर पे बनता है। एक तरफ उसमें क्या ली जाती है, नंबर ऑफ साइकिल्स लिए जाते हैं, और एक तरफ उसमें ली जाती है फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ ली जाती है एसएफ। तो हम ये देखने में आता है कि 1000 साइकिल पर, है ना, लॉग 1000 कितना होता है 3, है ना, लॉग लॉग में ग्राफ बनता है, तो लॉग 1000 इज 3। तो 1000 साइकिल पे जो उसकी स्ट्रेस वैल्यू होती है, फटीग स्ट्रेंथ वैल्यू जो होती है, मतलब जिसका शाफ्ट फेल होता है, वो वैल्यू होती है लॉग
0.9 SUT, 0.9 SUT, ठीक है। और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करते हैं तो उसकी फटीग स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है ना, और वो पॉइंट आता है 10⁶ साइकिल पे, जब हमारे 1 मिलियन साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं उस वक्त जो फटीग स्ट्रेंथ होती है उस फटीग स्ट्रेंथ को बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट ये वो फटीग स्ट्रेंथ होती है जिस पर कोई हमारा कंपोनेंट 1 मिलियन साइकिल के लिए सक्सेसफुली वर्क कर सकता है विदाउट एनी फटीग क्रैक, ठीक है। तो ये 10⁶ ऐसे ग्राफ आता है। उसके बाद ये आफ्टर 10⁶ ये ग्राफ बिल्कुल एजम्प्टोटिक हो जाता है और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये ग्राफ बिल्कुल एजम्प्टोटिक हो जाता है, मतलब फिर सिम्टम्स नहीं रहते हैं। यदि आप 1 मिलियन के बाद में और नंबर बढ़ाओगे तब भी आपकी एंड्योरेंस लिमिट फिक्स हो जाती है, फिर वो नहीं बढ़ती है ना, फिर वो नहीं बढ़ती, फिर वो नहीं घटती है, ठीक है ना, क्योंकि घटती जा रही है। देखो पहले ये इतनी थी कि रिड्यूस हो गई, फिर इसके बाद घटती नहीं है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ट्राइंगल मिलता है ABC, एक तो ये ट्राइंगल मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो यहाँ से कोई पॉइंट ले लूं इस पे, और इस पॉइंट से ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं नीचे की तरफ, तो एक ट्राइंगल ये भी बन जाता है ADE, एक तो ABC ट्राइंगल बन जाता है, एक ADE ट्राइंगल बन जाता है ना। अभी हम जब वैल्यू लिखेंगे तो ट्राइंगल में ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, फिर वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्राइंगल ADE और ABC, ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। आपस में सिमिलर होने की वजह से हम इन पर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं AE डिवाइड बाई AC इक्वल टू ED डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ठीक है। और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही फंडा है एसन डायग्राम का, है ना। बहुत ही इजी फंडा है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये मोटी मोटी बातें याद रखिए कि 1000 साइकिल पे 0.9 SUT होती है फटीग स्ट्रेंथ, 1 मिलियन साइकिल पे एंड्योरेंस लिमिट के बराबर होती है। अब 1000 से लेके 1 मिलियन के बीच में, रूबी 1000 से लेके 1 मिलियन के बीच में ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये हम सिमेट्री से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1000 साइकिल से 1 मिलियन साइकिल के बीच में कोई भी साइकिल होंगे तो उस पर जो फटीग स्ट्रेंथ मिलेगी वो इन दोनों के बीच में मिलेगी, मतलब एंड्योरेंस लिमिट और 0.9 SUT के बीच में आपको मिलेगी, और वो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, थोड़ा अभी नया कॉन्सेप्ट आया है क्योंकि एसन डायग्राम का इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसको जरा सा करते हैं। ए सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन, मैं जरा सा इंक क्लियर कर देता हूं पहले, है ना। तो ए सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ऑफ 100 मेगा पास्कल। तो देखिए मैं बना रहा हूं एसन डायग्राम, मैं डायरेक्ट एसन डायग्राम बना लेता हूं। 1000 साइकिल होगा तो ये वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे मुझे मिलेगा log ऑफ 0.9 SUT। तो देखो क्वेश्चन में क्या SUT गिवन है, बताइए। इस सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग स्ट्रेस ऑफ 100 मेगा पास्कल, फटीग स्ट्रेंथ टू सस्टेन 1000 साइकिल्स इज 490 मेगा पास्कल। दिया तो है 1000 साइकिल के लिए जो वैल्यू है वो 490 है ना। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली 490 यूज कर लेंगे, दैट्स ऑल, log 490। कभी कभी क्वेश्चन में वो SUT दे देता है तो हम 0.9 SUT निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 0.9 SUT डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे दिया आपको 490 है, तो आपको अलग से फिर 0.9 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो 1000 साइकिल्स के लिए वैल्यू है log 490, और अब इस पर स्ट्रेस कितना आ रहा है, 100 मेगा पास्कल का स्ट्रेस आ रहा है, और इसकी एंड्योरेंस लिमिट कितनी है, 70। तो एक एंड्योरेंस का पॉइंट मार्क करो, लेट दिस इज द पॉइंट ऑफ एंड्योरेंस, और ये वैल्यू हो गई log 70, क्योंकि एंड्योरेंस की वैल्यू कितनी है, 70। लॉग लॉग ग्राफ होता है, ये ध्यान रखिएगा, लॉग लॉग ग्राफ है, तो हर जगह लॉग लेना है, एंड्योरेंस लिमिट का भी लॉग लेना है, यहाँ भी लॉग लेना है, एवरीवेयर यू हैव टू टेक लॉग। ये 3 भी लॉग है 1000 साइकिल का, तो log 1000 इज 3, और जो log 1 मिलियन होगा वो 6 हो जाता है, 10⁶ का जो log होगा वो 6 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है,
और इसके बाद ये अजमटोटिक हो जाता है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, ये इतना हमने बना लिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाफ्ट है वो 100 मेगापास्कल के अल्टरनेटिंग स्ट्रेस में है। तो देखो ये 70 है, ये 490 है, तो 100 इनके बीच में ही तो आएगा, कहीं पर बीच में आएगा। तो मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे 100 आ रहा है, तो log 100 हो गया ये, है ना, log 100। अब इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। मैं जरा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा विजिबिलिटी आपकी ठीक हो जाएगी इसमें। रेड की जगह मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, रेड ग्रीन। तो यहां से आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज द लाइन, और यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये log 100 हो गया, और ये नंबर ऑफ साइकिल्स आ गए। मान लो कि नंबर ऑफ साइकिल्स n है, तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा log n। समझ में आ रही? log लेना है मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स का, तो ये वैल्यू हो गई log n। बस अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत आसान है। देखो ट्राइंगल नंबर 1 मतलब छोटा वाला ट्राइंगल, है ना। छोटा वाला ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ADE। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, दोनों सिमिलर है। तो छोटे वाले की हाइट कैसे निकालोगे? छोटे वाले की हाइट होगी log 490 माइनस log 100, log 490 माइनस log 100, ये छोटे वाले की हाइट हो गई, डिवाइडेड बाई बड़े वाले की हाइट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना। तो छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, बड़े वाले की साइड क्या हो जाएगी? log 490 माइनस log ऑफ 70। ये लाइन समझ में आ रही है ना आपको? नहीं तो पूछ लीजिएगा। ये हाइट को निकालना है तो ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से ये वैल्यू 490 तक है और ये वाली वैल्यू 100 तक है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हाइट मिल जाएगी। सो log 490 माइनस log 100 डिवाइड बाय log 490 माइनस log 7। लेफ्ट पार्ट इज कंप्लीट। अब आइए ये वाली हाइट पे, छोटे वाले की बेस कितना है? d। d कैसे निकालोगे? log n में से 3 माइनस करोगे, तो ये हो गया log n माइनस 3 डिवाइडेड बाई बड़े वाले की हाइट कैसे निकालोगे? बड़े वाले की जो बेस है वो क्या है? BC। तो BC आप कैसे निकालोगे? ये 6 का पॉइंट है, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन में अननोन कितने हैं? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? दर्शनदिल, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? ओनली वन अननोन इज देयर, है ना, ओनली वन अननोन इज। तो सॉल्व कर लोगे आराम से, जरा सॉल्व कर दीजिए, फास्ट सॉल्व करिए। और log 10 बेस से कर दीजिए आप, है ना। 10 t भी मान सकते हैं आप, 10 से ही कर दो, 10 बेस से करो, क्योंकि 1000 का 3 जो लिया हमने वो 10 बेस से लिया है, तो इसको 10 बेस से सॉल्व कर दो। करिए सॉल्व और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है ये 33। कितना आंसर आ रहा है बताइए? लॉग का यूज करना है, कैलकुलेटर उठाना है, 2 मिनट का काम है ना, 2 मिनट का काम। करिए 10 बेस वाला लॉग यूज कर लो। log 490, चलिए मैं भी करता हूं, माइनस log 100, ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है, log 490 माइनस log 100, ये ऊपर की बात हो गई, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में log 490 माइनस log 70, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई, ठीक है। अब इसमें मैं 6 माइनस 3 3 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू 3, ये आ गया। अब उसमें 3 प्लस कर दो तो प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो log n की वैल्यू आ गई दिस मच। अब इसको n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग कर दो, शिफ्ट लॉग आंसर इक्वल टू दिस मच। तो मेरा आंसर आ रहा है 2,81,913 साइकिल्स। कितना आंसर आ रहा है? 2, आपका भी यही आ रहा है ना? यस सर, 281,913.59। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हमारे आंसर्स मैच कर गए। तो अब जरा सा ऑप्शन देखिए, 1071, 1,500, 15,000, 2,81,914, ये आएगा। ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना? 2,81,914। अब 913 914 वो तो एक ही बात है ना, उसमें कोई इतना इशू नहीं है।
तो हमारी शाफ्ट की लाइफ क्या हो गई, 100 मेगापास्कल के स्ट्रेस पे यदि उसे चलाया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो वो इतने साइकिल्स तक वर्क करेगा और इसके बाद उसमें क्रैक आ जाएगा, फिर वो फेल हो जाएगा। तो इस ऐसे कामों के लिए यूजफुल है हमारा एसेंट डायग्राम। यदि उसे 490 के स्ट्रेस पर यूज किया जाएगा तो वो 1000 साइकिल तक चलेगा। यदि उसे 70 के स्ट्रेस पर यूज किया जाएगा तो वो 1 मिलियन साइकिल चलेगा, और यदि उसे 100 पर यूज किया जाएगा तो वो कितना चलेगा, 2,81,000। तो देखो ये 1000 और 10 लाख, 1000 और 10 लाख के बीच में ही तो आ रहा है, 2,81,913। तो ये बीच वाला पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से काफी इनपुट मिल गया आपको इस पर, है ना। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, यस और नो? यस सर। है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। A 60 millimeter long and 6 millimeter thick fillet weld, है ना। थोड़ा सा इंक क्लियर करता हूँ पहले। ये 60 मिलीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, फिलेट वेल्ड, कैरी ए स्टडी लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन लोड दे रखा है। अलोंग द वेल्ड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल इज 200, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो डिवाइड करके निकल जाता है ना, यील्ड स्ट्रेस बाय डिजाइन स्ट्रेस। तो यहाँ पे शियर का केस है तो शियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ऐसे करोगे। तो क्या क्या दे रखा है, 60 मिलीमीटर लेंथ दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, फिलेट वेल्ड है। तो फिलेट के केस में तो ट्रायंगल होता है ना फिलेट, तो ये बेस को क्या बोलते हैं, लेग, और इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। ये थ्रोट होता है। तो यहाँ पे 60 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 6 मिलीमीटर थिक फिलेट वेल्ड, है ना। 6 मिलीमीटर थिक फिलेट वेल्ड कैरीज ए स्टडी लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन। Along the weld, the shear strength of the weld material is equal to, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसकी हाउ मच शियर फोर्स इट कैन टेक, ये कितना शियर फोर्स टेक कर सकता है, आप वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चला करिए जरा, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, बताओ कैसे करोगे लाइन ऑफ एक्शन। यस, तो ये 6 मिलीमीटर थिक जो दिया हुआ है, ये कौन सी साइज है, ये आपकी लेग है। ये लेग जो है H बोलते हैं इसको, तो H इज इक्वल टू 6 दे रखा है क्वेश्चन में। 6 मिलीमीटर थिक फिलेट वेल्ड का मतलब है ये आपका H दे रखा है। जब H दे रखा है तो आप थ्रोट तो निकाल ही लोगे। थ्रोट क्या होता है, H/√2। तो जरा सॉल्व कर दीजिए, 6/√2 कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, जो भी आ रहा हो बताइए। 4.24। 4.24। तो ये आपको थ्रोट मिल गया, ठीक है। बस अब थ्रोट मिलने के बाद में आपका फोर्स कितना है, 15। तो 15 × 10⁻³ तो न्यूटन हो गए फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। अब आपका एरिया कितना है बताओ, एरिया होता है T/L। एरिया क्या होता है, T/L। अब आपका स्ट्रेस कितना है, अलोएबल स्ट्रेस कितना है, तो क्या दे रखा है, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल इज 200। तो शियर स्ट्रेंथ तो 200 दे रखी है, लेकिन अलोएबल कैसे निकलेगा, 200 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमारा हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस। और एरिया को जब हम परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में आप ये देख लो कि अननोन कौन है। आई थिंक T तो हमें पता है 4.24, L मतलब लेंथ भी हमें पता है 60 मिलीमीटर लॉन्ग गिवन इन क्वेश्चन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी फाइंड आउट इजीली। सॉल्व कर दीजिए, बता दीजिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है। T की वैल्यू 4.24, लेंथ की वैल्यू आपकी है 60, 200 डिवाइडेड बाई FS। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है। चलिए आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। 4.24 × 60 × 200, ये राइट हैंड साइड हो गई, डिवाइडेड बाई 15,000, कितना आ गया, 3.39। 3.39। तो ऑप्शन देखिए क्या 3.39 है, बी ऑप्शन होगा सर। यस
3.39 और 3.4 वेरी क्लोज है ना? सो ऑप्शन बी इज फाइनल, ऑप्शन बी इज फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। Which one of the following is the in the design of hydrodynamic general bearing? अभी तो theoretical question है ना? Which one of the following is the criteria? है ना, कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जो जनरल बियरिंग की डिजाइन में यूज होता है? जनरल बियरिंग में हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग है ना, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग भी एक तरह की जनरल बियरिंग ही है ना, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टैटिक, है ना, हाइब्रिड बियरिंग, ये सब जनरल बियरिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज डिफरेंट, उसमें रोलिंग एलिमेंट यूज होता है। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है? तो ऑप्शन दिए समरफील्ड नंबर, रेटिंग लाइफ। देखो लाइफ तो रोलिंग कॉन्टैक्ट में यूज होता है, लाइफ का शायद कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो कट हो गया। सर समरफील्ड होगा ना? हाँ समरफील्ड होगा, अभी एक क्वेश्चन भी आया था ना जिसमें हमने समरफील्ड निकाला था। यस सर। समरफील्ड नंबर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, S इक्वल टू म्यू एन एस डिवाइड बाई E इंटू R बाई C का होल स्क्वायर। तो समरफील्ड नंबर ही डिजाइन क्राइटेरिया होता है इन द केस ऑफ हाइड्रोडायनामिक जनरल बियरिंग। तो ऑप्शन ए ही लॉक होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज लॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 काय का क्वेश्चन है? बैंड ब्रेक का है। बैंड ब्रेक के क्वेश्चन तो कर चुके हैं पहले, है ना, तो एक तरह से रिपीट है, तो इसका कंसेप्ट दूंगा और आप कर लेना। ठीक है, उसी तरह से। अब इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे बैंड ब्रेक के केस में? बताओ। बैंड ब्रेक के केस में तो वही फॉर्मूले यूज होंगे, T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई। बैंड ब्रेक के केस में यही दो फॉर्मूले यूज करना। तो कंसिस्ट ऑफ ए लीवर अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द बैंड, द अदर एंड ऑफ द बैंड इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, द व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 200 mm and the wrap angle of the band is 270 डिग्री। रैप एंगल कितना दे रखा है? 270 डिग्री। रेडियन में कितना हो गया? 3π/2। तो ये थीटा की जगह पे हम 3π/2 यूज कर लेंगे। तो e टू द पावर म्यू, म्यू हमें दे रखा है कितना? देखो क्वेश्चन में म्यू दे रखा है क्या? यस। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द व्हील इज 0.5। तो e टू द पावर 0.5 इंटू 3π/2। ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, तो एक तरह से आपको T1 बाई T2 मिल जाएगा। एक इक्वेशन नंबर 1 ये बना लोगे आप। अब दूसरा देखो, ग्राउंड, द व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 200 mm and the wrap angle is this much, braking force applied to the lever is limited to 100 न्यूटन। जो ब्रेकिंग फोर्स है लीवर पे जो अप्लाई होगा वो 100 न्यूटन लिमिटेड है। ठीक है, तो अब इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये O पॉइंट है ना, ये आपका बैंड है, इस तरह से ये लगा हुआ है। तो अब इसमें ये 100 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो इस बैंड ब्रेक में जो फोर्स डेवलप हो जाएगा, लेट दिस फोर्स इज टेंशन T, और यू कैन से टेंशन ही कह लीजिए, लेट दिस इज टेंशन। तो ये टेंशन हो जाएगा T1 और ये हमारा टेंशन हो जाएगा T2। तो T1 बाई T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी? दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में देखें क्या है, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड टू द लीवर इज दिस मच। अब देखो T1 को हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे टॉर्क तो दिया नहीं है, तो टॉर्क नहीं दिया है तो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मानकर हम मूवमेंट तो ले ही सकते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट पे हम मूवमेंट ले सकते हैं। तो सिग्मा MO मस्ट बी 0। तो देखो 100 वाला जो है डाउनवर्ड फोर्स है, इसका मूवमेंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो इसको मैं माइनस ले लेता हूं, 100 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर मतलब 2000 mm है ना, या मीटर में भी लेके चल सकते हैं, लेट इट इज 2 मीटर। अब देखो T1 एक फोर्स है, तो T1 का मूवमेंट कितना हो जाएगा? T1 इंटू डिस्टेंस, और इसका जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप लिख सकते हैं प्लस T1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो T1 इंटू 1 मस्ट बी 0।
तो यहां से आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी बोलो? इसको सॉल्व कर दो। T1 आ गया 100 टू जा 200, तो T1 की 200। वैल्यू हो गई 200। करेक्ट है। अब देखो, जब T1 200 हो गया तो फिर तो T2 बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि T1/T2 हमें पता है ना। जब T1/T2 का रेशियो पता है तो T1 यदि निकल चुका है तो T2 निकल जाएगा। जब T1 और T2 दोनों ही निकल जाएंगे तो फिर हमसे वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन तो पढ़ो, ये तो कॉमन डाटा दिया हुआ है। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी जनरेटेड इन द बेंड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? ठीक है, मैक्सिमम टेंशन। तो देखो ये एक्चुअली हमारा 200 आया ना, तो मेरे ख्याल से ये T2 है हमारा, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका T2 है और ये आपका T1 है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू तो आपकी आ गई 200। ठीक है, अब T1/T2 जो है वो आपका है e⁻μ थीटा। म्यू आपका 0.5 है, थीटा आपका 3π/2 है। सॉल्व करिए जरा इसे, कितना आ रहा है कर दीजिए, 2 मिनट 1 मिनट में हो जाएगा। शिफ्ट ln, ये आ गया ब्रैकेट में 0.5 × 3π/2, ये आपका आ गया 10.55। ठीक है, ये रेशो कितना आ गया हमारा? यस सर। 10.55। आपका भी यही आ रहा है? यस सर। हाँ, तो 10.55 हमारा जो है रेशो आ गया है ना। सो द रेशो इज 10.55। तो T1/T2, T2 हमारा कितना है? 200, ये हमने निकाल चुके हैं। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आंसर आएगा? आ रहा है इंटू 200 करिए, कितना हो जाएगा? 2110.14। 2110। तो देखिए जरा, इसमें 2110 अवेलेबल है। यस, सो ऑप्शन बी इज लॉक्ड। ऑप्शन बी इज लॉक्ड। क्लियर? अब आते हैं, वी आर मूविंग टू, हाउ मच टाइम वी हैव नाउ? हाँ जी, अभी तो हमारे पास टाइम है ना 5। अभी तो हम 2-3 क्वेश्चन 40 तक आज कर देते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, यस है ना। सर। तो टोटल देयर आर 54 क्वेश्चंस। तो अब ये लगा लो कि हमारे 40 हो जाएंगे, तो कल के लिए केवल 14 क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, 1 घंटे या 1.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे। तो कल हमारा ये फिनिश हो जाएगा, और कल के बाद फिर जो क्लास आपकी होंगी वो हरीश सर लेंगे। ठीक है, 1-2 क्लास जितनी भी होंगी वो हरीश सर लेंगे, और वो भी आपको गेट के पेपर सॉल्व करवाएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको करवाए हैं 2001 से लेके 2013 तक के गेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2001 से लेके 2013 में ये फाइल आपको भेज दूंगा, और हरीश सर आपको फिर करवाएंगे 2013 से लेके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। इस तरह से आपका मशीन डिजाइन 1 और मशीन डिजाइन 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप जो है एग्जाम दीजिएगा, वो भी आपका गेट कोच के द्वारा यहाँ होगा या आगे। तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो बस 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लोज कर देंगे आज की क्लास को। ठीक है, आज हमने काफी क्वेश्चन निपटाए। हमने कहाँ से शुरू किया था? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 21 और 40 कर दिया, 20 क्वेश्चन हमने निपटा, है ना। अच्छी स्पीड है। तो मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी, तो हमने कर ही लिया। द मैक्सिमम व्हील टॉर्क। अच्छा, अभी टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क तो पता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? बैंड ब्रेक के केस में टॉर्क का फॉर्मूला T1 - T2 इंटू रेडियस। अब T1 हमारा कितना है? 2110, हमने अभी निकाला है। T2 हमारा कितना निकला है? 200, हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले ही, इंटू रेडियस। अब रेडियस क्वेश्चन में देखो कितनी रेडियस दे रखी है, तो देखो ये कितना दे रखा है? 200 mm। 200 mm दे रखा है ना। मैं जरा सा इंक क्लियर करता हूँ, मान लीजिए, तो आपको क्लियर नजर आएगा। तो देखो ये कितना दे रखा है? रेडियस 200 mm रेडियस दे रखी है। डायरेक्ट एरो को देखिए, रेडियस को शो कर रहा है। तो अब आपका ये हो जाएगा 2110 माइनस 200 इंटू रेडियस। रेडियस हो गई 200, तो ये आपका हो गया फ्रिक्शनल टॉर्क, और इसकी यूनिट आएगी न्यूटन mm में। 1000 से डिवाइड कर देना तो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है।
2110 minus 200 equal to multiplied by 200 डिवाइड बाई 1000 382। देखिए 382 का ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज 382। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। सो दिस इज 382 ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38 ना। 2004 पे पहुंच गए हम। देखो हमने शुरू किया था 2013 से, है ना, 2013, 12, 11 ऐसे करते हुए हम अब 2004 पे पहुंच गए, है ना। मैं आपको 2001 तक ले जाऊंगा, तो 2001 से 2013 आपका फिनिश हो जाएगा, फिर आगे का हिस्सा आपको करना है। ओके, सो टू मैटिंग स्पर गियर्स हैव 40 and 120 टीथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो वही चीजें दे रखी हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हो। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 40 है, Z2 120 है। तो द पिनियन रोटेट्स एट 1200 आरपीएम, पिनियन की आरपीएम भी दे रखी है 1200। ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क भी दे रखा है 20 न्यूटन मीटर या 20,000 न्यूटन मिलीमीटर, है ना। मैं अपनी यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी से नोट करता हूँ 20,000 न्यूटन मिलीमीटर। द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर इज। अच्छा देखो ये पिनियन का टॉर्क है, ये किसका टॉर्क है, पिनियन का टॉर्क है, और हमसे वो किसका टॉर्क पूछ रहा है, गियर का टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है, इसका टॉर्क पूछ रहा है, गियर का टॉर्क पूछ रहा है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई, है ना, एन हम ले लेते हैं पिनियन के लिए N1, है ना, पावर किलोवाट डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 6। ये पावर हो गई पिनियन की पावर। ठीक है, पावर डेवलप्ड एट दी पिनियन शाफ्ट। अब हम करते हैं पावर डेवलप्ड एट दी गियर शाफ्ट, तो वो कैसे निकलेगा, 2 पाई N2 हमने ले लिया आरपीएम ऑफ द गियर। दोनों की आरपीएम तो अलग है ना भाई, दोनों के नंबर ऑफ साइकिल्स तो अलग ही होते हैं, डायमीटर अलग है, तो 2 पाई N2 इंटू किलोवाट। पावर ले रहा हूं तो ये टॉर्क आएगा, है ना, इट इज MT1 और ये आएगा MT2, है ना। पावर का फॉर्मूला है 2 पाई MT1 डिवाइड बाई 60 10 टू पावर 6, 2 पाई MT2 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये मैंने लगाया है पावर डेवलप्ड एट द पिनियन, है ना। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, ये पावर डेवलप्ड एट पिनियन एंड दिस इज द पावर डेवलप्ड एट गियर। तो अब आपको ये तो पता है कि पावर तो कॉमन होती है, जितनी पावर पिनियन और गियर की अलग अलग थोड़ी होती है, इक्वल होती है, तो आप इनको इक्वल रख सकते हो। इक्वल रखते ही आपका 60 कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, N1 MT1 इक्वल टू N2 MT2, यही तो बचा। ठीक है, अब देखो MT1 आपको दे रखा है 20,000, MT1 तो आपको गिवन है। ठीक है, अब आप देखो पिनियन रोटेट्स एट 1200 आरपीएम, तो 12 N1 भी गिवन है ना, N1 भी गिवन है, करेक्ट। अब आपसे MT2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका अननोन है, ये आपका अननोन है। अब N2 क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखी है, लेकिन N1 बाई N2 इक्वल टू होता है Z2 बाई Z1, ये बेसिक फॉर्मूला है। N1 बाई N2 होता है Z2 बाई Z1। अब देखो N1 आपका कितना है 1200, N2 हमें निकालना है, Z2 आपका कितने टीथ है 120, गियर पर टीथ 120, पिनियन पर टीथ कितने हैं 40, है ना। तो N2 कितना आ गया आपका 40, 3 जा 1200 बाई 3, 400 आरपीएम आ गया। तो N2 आपका 400 हो गया, तो N2 भी आपको गिवन है एक तरह से। तो अब आप MT2 निकाल लोगे कि निकाल लोगे, बड़े आराम से, तो जरा कर दो इसको सॉल्व। N1 कितना है आपका, N1 आपका 1200 है, वैल्यू पुट कर रहा हूं। MT1 दे रखा है 20 न्यूटन मीटर, मान लो न्यूटन मीटर में ही ले लो, चलो आंसर फिर न्यूटन मीटर में ही आ जाएगा। तो N1 MT1 इक्वल टू N2, अब N2 हमारा 400 आया है, तो ये MT2 हो जाएगा। अब 400 से ये 1200 3 बार कट जाएगा, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया 60। सो आंसर कौन सा हो गया 60 न्यूटन मीटर। ऑप्शन डी इज लॉक्ड। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। सिद्धार्थ चंदेल, प्रयास और बाकी लोग बताएं क्या आपको आ गया समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। क्लियर है।
very good. So now we are moving to question number 39. Question number 39. बस 40 तक ही कराऊंगा आज, है ना. Question number 39. In terms of theoretical stress concentration factor KT and fatigue stress concentration, the node sensitivity Q is expressed as, ये तो theoretical है, तो Q का फॉर्मूला याद रहे, सबको याद है. Q इक्वल टू होता है KF माइनस 1 डिवाइड बाई KT माइनस 1, है ना. नोड सेंसिटिविटी फैक्टर जो होता है KF माइनस 1 बाई KT माइनस 1. इस KF को हम क्या बोलते हैं? फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. और KT को हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. KT थ्योरेटिकल है, KF एक्चुअल है. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है तो ये आइडियल मटेरियल पे यूज होता है, और ये एक्चुअल है तो ये एक्चुअल मटेरियल पर यूज होता है. और इन दोनों के जो रेशियो आता है वो नोड सेंसिटिविटी होती है. तो मिला लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा मैच कर रहा है प्रयास? ऑप्शन ए, KF माइनस 1 बाई KT माइनस 1, है ना. तो KF माइनस 1 इसमें भी है, लेकिन यहाँ प्लस कर दिया इसमें, तो ये गलत हो गया. यहाँ प्लस कर दिया, ऊपर भी प्लस कर दिया, ये गलत हो गया. दोनों जगह माइनस कर दिया है, ये भी गलत हो गया. नहीं, दोनों जगह माइनस तो है, लेकिन ऊपर KF है, यहाँ KT आ गया है, तो इसलिए ये गलत हो गया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज लॉक्ड. ठीक है. मूव, आई एम नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. The SN curve for the steel becomes asymptotic nearly at. अरे ये तो अभी बताया था मैंने, SN डायग्राम बताया था ना, देखो. आपको अभी, हाँ बिल्कुल बताया था. ये देखो ऐसे आता था ग्राफ और ऐसे स्ट्रेट हो जाता था. तो ये वाला जो पॉइंट था ये कितने साइकिल को रिप्रेजेंट करता था? 1 मिलियन साइकिल, 10 टू द पावर 6 साइकिल को. तो इस पॉइंट, हाँ, तो 10 टू द पावर 6 ही इसका आंसर आएगा. इसके बाद ये असिम्प्टोटिक हो जाता है ना. SN कर्व फॉर द स्टील, स्टील के लिए ही असिम्प्टोटिक होता है. एल्युमिनियम वगैरह के लिए ये असिम्प्टोटिक नहीं होता है, ये फर्दर रिड्यूस होता है 1 मिलियन के बाद भी. ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, पर स्टील के लिए ये असिम्प्टोटिक हो जाता है. तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था. SN कर्व फॉर द स्टील बिकम्स असिम्प्टोटिक नियरली एट. तो ऑप्शन सी इज लॉक्ड. ऑप्शन सी इज लॉक्ड. ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं एंड कर रहे हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वो और दिखाना चाह रहा था, 1-2 मिनट का टाइम और लूंगा आपका. हम एक बार फिर से क्यों ना अपने सिलेबस पे नजर मारें, है ना. तो चलिए मैं जरा सा इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, स्टॉप शेयर करके मैं आपको एक वो दिखाता हूँ. जरा सा एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ. दैट फाइल इज, मैं प्रेजेंटेशन एक ओपन कर रहा हूँ, गेट PPT. So this is opened and now I am sharing it, है ना. I am sharing the PPT. आप लोग भी बोर हो गए क्वेश्चन करते करते, अब थोड़ा वैसे ही बात करेंगे जनरल, है ना. नो क्वेश्चन नाउ. तो अब इसमें PPT को मैं शेयर करता हूँ. ये मैंने शेयर किया. शेयर करने पर सिलेबस पे एक नजर मारना मैं चाहता हूँ, है ना. सेकंड फाइल, अब आपको ये अभी फुल मोड में नहीं होगी, है ना. क्या ये स्क्रीन आपकी फुल मोड में है? नहीं, तो इसको मैं जरा सा फुल कर लेता हूँ. अब ये फुल मोड में आ गई होगी, है ना. अब ये फुल मोड में आ गई होगी. यस सर. और मैं इसका जरा सा पॉइंटर बना लेता हूँ. लेट दिस इज ए पॉइंटर. नाउ दिस इज द सिलेबस. बस मैं इस पे 2 मिनट लगाऊंगा आपको. देखो, मशीन डिजाइन का जो गेट सिलेबस है, डिजाइन फॉर दी स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, है ना, हम कवर कर चुके हैं. मतलब इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, है ना. हो सकता है हमने 2-2, 3-3 या 4-4 क्वेश्चन करे हों. दोनों के जितने भी आए होंगे हमने करे हैं. गेट में जिस तरह के आए हैं वी हैव डन. फेलियर थ्योरीज हमने डिटेल में समझा है, उसके क्वेश्चंस भी हमने करे हैं, है ना. 5 तरह की थ्योरीज होती हैं, आपको पता है उसके ग्राफ कैसे होते हैं, सेफ रीजन क्या होते हैं, है ना. इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मतलब गेट के हिसाब से अभी आपके माइंड में भर जाए कि आपको हमें मशीन डिजाइन में ये करना है. ठीक है. फटीग स्ट्रेंथ, देखो फटीग स्ट्रेंथ वर्ड हम यूज कर चुके हैं SN डायग्राम में. अभी मैंने आपको SN डायग्राम यूज करके दिखाया था. तो उसमें जो ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही थी
एक वैल्यू, एक एंड्योरेंस लिमिट आ रही थी यहाँ पे लास्ट में, ऐसे करके ग्राफ था, और ये आपका SF यानी कि फटीग स्ट्रेंथ। तो ये सारी वैल्यू फटीग स्ट्रेंथ है ना। ये भी फटीग है, ये भी फटीग है, ये भी फटीग है, ये भी फटीग है, ये भी फटीग है। फटीग की एक स्पेशल वैल्यू है जो कि 10⁶ पे एजम्प्टोटिक हो जाती है, तो उस वैल्यू को हम एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। एंड्योरेंस लिमिट फटीग स्ट्रेंथ की एक स्पेशल वैल्यू है, ठीक है। तो फटीग स्ट्रेंथ भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। एसन डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, है ना। मशीन एलिमेंट के डिजाइन का प्रिंसिपल तो पता ही है भाई, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, शियर क्राइटेरिया लग रहा है या नॉर्मल क्राइटेरिया लग रहा है ना, या फिर बॉर्न मैसेज से करेंगे। तो ये तो प्रोसेस पता है ना। पहले क्या करते हैं, मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, फोर्स एनालिसिस करते हैं, ये सब चीजें क्लियर है। सच एज अब बोल्टेड जॉइंट, बोल्ट के क्वेश्चन भी हमने करे, है ना, हमारे इसमें तक आ चुके हैं। रिवेटेड के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना। दोनों का सेम कंसेप्ट है प्लेन ऑफ शियर में। प्लेन ऑफ शियर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बिना दूसरे वाले केसेस के क्वेश्चंस नहीं आए हैं गेट में, केवल प्लेन ऑफ शियर के आए हैं, तो आप लोग प्लेन ऑफ शियर पे ही फोकस करें। ट्रेंड देखना चाहिए, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें सबको, लेकिन फोकस इस पे ज्यादा करें। एंड वेल्डेड जॉइंट, वेल्डेड के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, है ना। फिलेट वगैरह के क्वेश्चन जो थे वो वेल्ड से रिलेटेड ही थे, है ना, वेल्ड के रिलेटेड थे, थ्रोट वगैरह के, लेग वगैरह के, है ना। तो बोल्टेड कवर हो गया हमारा, रिवेटेड कवर हो गया, वेल्डेड भी कवर हो गया है। हाँ, देखो 3 क्लासों में मैंने ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि मैं आपको हर टॉपिक अलग से पढ़ाता, है ना, तो हर टॉपिक कम से कम 2-3 क्लास तो थ्योरी में खा जाता, और फिर उसको न्यूमेरिकल कराओ, और फिर भी वो आउटपुट आपको गेन नहीं होता जो इस तरह से कराने पर टाइम भी कम लगा है और आपको इनपुट भी ज्यादा मिला है ना। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। वेल्डेड जॉइंट हम कर चुके हैं। शाफ्ट डिजाइन, शाफ्ट के भी क्वेश्चन आए थे, हमने किए हैं। गियर्स के भी आए थे, हाइपोइड गियर वगैरह, थोटिकल भी आए थे, न्यूमेरिकल भी आए थे, सर्कुलर पिच के भी किए थे, अडेंडम के भी किए थे, डिडेंडम मॉड्यूल, है ना, सब कुछ किया हमने। गियर्स भी, और गियर्स में आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस जो आए हैं वो इस पर गियर के आए हैं गेट में, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस पर के आए हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जैसे मैचिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस थे उनमें उसने बिवल, वर्म व्हील या हाइपोइड, उसमें सबको इंक्लूड कर लिया है ना। तो बाकी सभी गियर्स की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा गियर कहाँ यूज होता है ना, किसमें हम ज्यादा वेलोसिटी रेशो गेन कर सकते हैं। तो वर्म एंड वर्म व्हील एक ऐसा गियर है जिसमें आप 100:1 का वेलोसिटी रेशो भी गेन कर सकते हैं, है ना। ये बाकी जितने भी गियर हैं, इस पर हुआ, हेलिकल हुआ, बीवल हुआ, इन सब की लिमिट है। इनके अंदर जो वेलोसिटी रिडक्शन है वो 10:1 से कम ही होता है, 10 से ज्यादा का वेलोसिटी रेशियो रिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जो वर्म व्हील है उसके अंदर हमको ज्यादा गियर रिडक्शन मिल सकता है। तो थोड़ी बेसिक कंसेप्ट यही आनी चाहिए, किसमें कितना गियर रेशियो मिलता है, कौन से गियर में शाफ्ट पैरेलल होते हैं, कौन से में टीथ इंक्लाइंड होते हैं, है ना, कौन से की पिच सरफेस हाइपरबोला होती है ना, क्राउन गियर क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी आनी चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल पे आप जोर दीजिए, इस पर गियर के न्यूमेरिकल पर ही आप जोर लगाइए, क्योंकि ट्रेंड है अभी ये। अब आइए रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलिंग बियरिंग के भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, लाइफ वगैरह के क्वेश्चन है, लोड लाइफ रिलेशनशिप के, है ना, ये सब हमने किए हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के भी हमने किए हैं, है ना। समरफील्ड नंबर निकाला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज किया हमने इसमें, है ना। टॉ इक्वल टू म्यू इनटू dy/dy यूज किया था, है ना। शियर फोर्स, टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क, पावर, सब कुछ निकाला है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आल्सो वी हैव कवर्ड। ब्रेक्स के भी क्वेश्चन किए हैं हमने। ब्रेक्स में दोनों तरह की ब्रेक्स आ गई हैं, बैंड ब्रेक भी आ गई है, ब्लॉक ब्रेक भी आ गई है ना। तो बैंड ब्रेक में वही T1/T2 e to the power mu theta T1 - T2 into R, और ब्लॉक ब्रेक में हम जो है म्यू आर इंटू एन। फ्रिक्शनल टॉर्क ब्लॉक ब्रेक के लिए होता है म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, है ना, थोड़ा सा फर्क है। तो हमने दोनों तरह के ब्रेक्स क्वेश्चन भी किए हैं। क्लच के क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, है ना। क्लच के केस में जो टॉर्क होता है वो आपको बता दिया है 2/3 म्यू W into R1³ minus R2³ divided by R1² minus R2²। ये हमने काफी किया है, तो क्लच भी हमने कंप्लीट किया है। अब आते हैं हम स्प्रिंग पर। तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है ना। कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया है क्या, आप लोग बताइए। स्प्रिंग का नहीं आया है। स्प्रिंग का नहीं आया है, तो कल की क्लास में हम मेन फोकस हम जो करेंगे वो हम स्प्रिंग पर करेंगे, ठीक है।
स्प्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे। जो आगे अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका स्प्रिंग का जरूर होगा और हम स्प्रिंग को फोकस करेंगे। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग। तो यही सिलेबस है गेट का। मैंने मोटा मोटा आपके सामने रखा है कि ये हमने पहले क्लास में भी आपको दिखाया था, और अब एक तरह से ये मान लीजिए कि कल की क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी। तो मेरी तरफ से यही इनपुट है आपको कि आप गेट की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से ही करेंगे, देन यू विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दैट। ठीक है, तो कोई क्वेरी तो नहीं है अब आपकी? मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। केवल अब स्प्रिंग बाकी है हमारी तरफ से।